Okay, so let us start the class. Have you people tried for the homework, whatever I have given? Yes, ma'am. हो गया था दोनों? मैम इनफाइनाइट सीक्वेंस का जो करना था प्रो, हाँ और ये नीचे वाला लास्ट वाला। हाँ, तो ये दोनों एग्जाम्पल हुआ, ये दोनों प्रूफ हो गए कि वेक्टर स्पेस है या नहीं? यस मैम, हो गया प्रूफ। वेक्टर स्पेस दोनों है। दोनों ही वेक्टर स्पेस है ना? यस मैम। ओके, मैम लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट वाले में कौन सी प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही थी? मैम डिस्ट्रीब्यूटिव, और मैम आइडेंटिटी ओके, वाला में नहीं हो पा रहा था। वेक्टर आइडेंटिटी। यस मैम। ओके, सो इसमें हम लोगों को क्या दिखाना था? पहले हमारा फंक्शन क्या कहता है कि V इज सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शंस फ्रॉम R to R that satisfy the equation f double dash is equal to minus of f. Means second derivative of f is equal to नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट। कुछ ऐसे फंक्शंस आप लोग हमें बता सकते हैं क्या जो सेटिस्फाई करते हो इस क्राइटेरिया को? कोई एग्जाम्पल किसी को याद आ रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जो कि R से R पे हो और f डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ f दे फॉर एवरी x इन x, फॉर एवरी x इन R? यस मैम, साइन एक्स। साइन x हो सकता है। f डबल डैश x इज इक्वल टू f माइनस f ऑफ x फॉर एवरी x in R, and let the field of scalars be R and define vector addition and scalar multiplication in this way and verify whether this is a vector space or not. So for this we have to check whether the vector additive inverse vector exists or not. With respect to that, if I see that fourth property is that one or fifth? Fourth one. Fourth one says that if f belongs to V, then it will satisfy. First thing is what? F double dash is equal to minus of f. And if f is belonging to V which satisfy this, then minus of f will be what? ये V में belong करेगा या नहीं? इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? पहले करेगा। देखते हैं कि करेगा। क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस एफ का डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो बाय डेफिनेशन क्या होता है डेरिवेटिव? c इंटू एफ डैश इज इक्वल टू c इंटू एफ डैश, राइट? और अगर इसका एक और बार डेरिवेटिव लेते हैं तो c इंटू एफ डैश का डैश, और सिंस c इज अ स्केलर so this will give us what again? c f double dash. So whenever we will differentiate minus of f twice time, it will becomes what? Minus of f double dash, and this will be what? F, am I right? Because minus f double dash is equal to
minus of f. This will give us what? Minus of f from the first one, and this minus minus becomes ab into v. हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. हाँ, माइनस इंटू माइनस तो फिर से f हो जाएगा ना. So from this one we can conclude that this implies that minus of f belongs to v, and if this belongs to v, then f plus minus of f of x will be what? This will be f of x plus minus f of x, and this is equal to 0, and 0 is for every x. So we can write this one as 0 bar of x, right? So this will imply as what? F plus minus of f is equal to 0 bar, and this implies that existence of additive inverse. कोई नहीं है. Right? सभी लोग स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं ना कि हमने कैसे किया है? Yes, ma'am. किसी को कोई स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है? टेल मी. No, ma'am. ओके. कृष्णा कुमार भाई अपना माइक म्यूट कर ले यार. Now we have to find distributive property. Distributive is 7th one. It says what? Whenever f and g belongs to v and c belongs to r, then c of f plus g will be what? Right? We have to verify whether c of f plus g is equal to cf plus cg or not. So how we will verify this one? That first we need to check whether c into f plus g belongs to v or not. Since f belongs to g, f and g belongs to v, both will satisfy. F double dash is equal to minus of f and g double dash is equal to minus of g, right? And c of f plus g, this will be what? Whether this will belongs to g, this will belongs to v or not. So this will belongs to v. Why? Because if we will take the second derivative of this one, this will becomes what? C f double dash plus C of f plus g of dash is equal to C f dash plus g double dash, right? होगा ना? And this will be what? Whenever we will substitute f double dash is equal to minus of f, g double dash is equal to minus of g, it will becomes minus of c into f plus g. So this belongs to v, and also this cf and cg belongs to v. Both of them, all three of them belongs to v. Now we have to check whether the left side is equal to right side or not. For that, how we will go with? We will take, let x be any member of R, because the function is from R to R. Then C of f plus g of x will be what? By definition, it will be C of f plus g of x, right? This will becomes, let me write down, this will become C into f of x
plus g of x, right? And now c is a real number, f is a real number, g of x is a real number. Why? Because the function is from R to R, and we know that real number multiplication is distributive over addition. So this will become what? C f of x plus C g of x, right? And then again by utilizing the definition, we can write this one as CF plus CG of x, right? And since here we have taken x arbitrary, we have not fixed any x. So since this hold for arbitrary x, from this we can conclude that C of f plus g is equal to CF plus CG. Means first distributive property hold, right? Now for second one, right? इसमें किसी को कोई डाउट है? मैम हाँ, मैम आपने जो डेफिनेशन यूज किया एफ डबल डैश इक्वल टू माइनस एफ, वो यहाँ यूज कहाँ हुआ? वो तो सेकंड लाइन में आपने यूज किया इसको जिससे हमने आपने यूज इसको f डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ f और g डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ g को यूटिलाइज हमने यहाँ पे किया कि ये जो दोनों मेंबर्स हम इक्वल कर रहे हैं, हमें पहले ये देखना होगा ना कि ये दोनों v में जा रहे हैं या नहीं। मतलब जब f और g हमारा v में है तो c इंटू एफ प्लस जी पहले v में है या नहीं, फिर हम चेक करेंगे ना कि वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि नहीं। ओके मैम, मतलब पहले वेरीफाई कर लेंगे और फिर बाद में अपना जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला कंडीशन है वो अप्लाई करके इक्वेट कर देंगे ना। हाँ, बेसिकली ये कुछ जैसे हमारे फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं ना, तो ये उन फंक्शंस में से एक सब कलेक्शन लिया गया जो स्पेसिफिकली इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे थे, और उन फंक्शंस को बस लेके देखा गया कि क्या वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं। तो वो बस एक हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, कोई एक बड़ा सेट था जिसमें हमारे बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। सारे फंक्शंस, जैसे सुबह हम लोगों ने कंटिन्यूअस फंक्शंस के सेट को वेक्टर स्पेस दिखाया, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस तो होगा ही, राइट? यस मैम। तो वहां हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि वो वेक्टर स्पेस है, लेकिन अब उसमें से एक दूसरा छोटा सबसेट लिया हम लोगों ने कि अब हम केवल कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं देख रहे हैं, अब हम उन फंक्शंस को देख रहे हैं जिनका सेकेंड डेरिवेटिव पहले तो एग्जिस्ट करे, दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव जो हो उसका वो उसी फंक्शन के निगेशन के बराबर हो। क्या उन सेट्स का कलेक्शन वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? तो Yes, उसको ma'am. फिर हम लोग चेक कर रहे हैं इस वाले एग्जांपल में। बेसिकली ऐसे ही आप ऐसे भी कर सकते हो कि f डबल डैश इज इक्वल टू एफ हो, या फिर और भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के कोई आप एक दूसरा कलेक्शन बना सकते हो। उसके लिए वेरीफाई कर सकते हो कि क्या वो फंक्शन जो होंगे वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे या नहीं। राइट? मतलब कोई डाउट? नो मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो बेसिकली अभी हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता ना कि हम लोग इन्हें यूज कहाँ करेंगे। जब हम लोग हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं, डीप मैथमेटिक्स आप लोग समझ सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग एमएससी में जाते हैं फॉर प्योर मैथमेटिक्स, देन दे विल सी वेयर वी आर गोइंग टू यूज ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि अभी हम लोग बहुत ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। जैसे मे बी आप लोगों ने नाम सुना होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम सुना है ना? यस मैम। वहां पे आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन जब आप आगे जाएंगे, अगर आप कंटिन्यू करते हैं एमएससी में, तो कुछ जगह ऑप्शनल पेपर में इलेक्टिव में आता है फोरियर एनालिसिस।
वहां पे जैसे आप देखेंगे तो जैसे रियल एनालिसिस है हमारी पूरी पैरेलल थ्योरी फंक्शन एनालिसिस की चलती है, फोरियर एनालिसिस की चलती है। ओके यस ओके। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम प्रूव करें, क्या हो जाएगा? बेसिकली कर दीजिए मैम। मतलब आप लोगों ने नहीं किया होमवर्क, वेरी बैड। इसके लिए हम लोग सॉरी मान मैम। लेते हैं, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं हमें क्या दिखाना है कि a प्लस बी इंटू वी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी वी है या नहीं, मीन्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू फील्ड एडिशन और नॉट। So for this we will take C1 and C2, two elements from field. Since our field is R, we are taking C1, C2 from R, and F is any element from V. Then C1 plus C2 into F. First, you people please tell me whether this will belongs to V. यस This Yes, will ma'am. belongs to V. Also, C1F belongs to V. Scalar multiplication तो उसमें चाहिए रहता, Yes, ma'am. right? And C2 of F is also belonging to V. Now we have to verify whether C1 plus C2 of F is equal to C1F plus C2F or not. So for this again we will take an arbitrary element x of R. Let x belongs to R be arbitrary. Why I am taking arbitrary? अच्छा उस पे आते हैं, पहले प्रूव कर लेते हैं। C1 plus C2 of F into X, sorry not into, since this is a member of V, so this will be a function. So C1 plus C2 into F of X will be what? बताइए, by definition क्या होगा? C1 plus C2 into F of X, right? अब f of x रियल नंबर हो गया, C1 C2 भी रियल नंबर्स हैं। हम लोग फिर से जानते हैं कि रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर रियल नंबर्स, सो वी कैन यूटिलाइज दैट वन एंड राइट दिस वन एज C1 f of x plus C2 f of x, right? And now again by using the definition of vector addition with respect to the given set, this will become what? C1f plus C2f of x, right? And this will imply as what? C1 plus C2 of f is equal to C1f plus C2f for every C1, C2 belonging to R and f belonging to V. Am I right? So from this we can conclude that the second distributive property also holds. राइट? अब हमें आप लोग यहाँ से ये बताइए, अच्छा तो अभी तो ये प्रूव हो गया कि ये पूरा हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, राइट? जो सेकंड गिवन एग्जांपल था दैट इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशंस। एग्री? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब आप में से कोई हमें ये बताइए हम यहाँ x बिलोंगिंग टू आर आर्बिट्रेरी क्यों ले रहे हैं? मैम क्योंकि सिंपल में और कंटिन्यूअस फंक्शन में एक्स के साथ हम लोग इसका जो कह सकते हैं प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे प्रूव करने में आसानी रहेगी, इसीलिए। फिर से बताइए।
नहीं मतलब हम सुबह भी ले रहे थे तो भी हम एक्स आर्बिट्रेरी ले रहे थे ना। Because ma'am, for every x we have to prove the situation. Right, because we have to prove for every x, and also we say two functions will be equal if and only if f of x, first thing is what, दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जब पहले दोनों का डोमेन सेम हो। मतलब अगर f हमारा s से r पे जा रहा है तो g भी हमारा s से r पे ही जाए। इक्वल टू नहीं, जो कि ये फंक्शन है। g is also defined from s to r and f of x is equal to g of x for every x in s। तब हम जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी हम लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू जी है या नहीं, क्योंकि ये एक पूरा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अभी ये नंबर नहीं है। तो नंबर रहता तो हम लोग कंपेयर कर पाते, पर बिना नंबर के कैसे कंपेयर करेंगे, है ना। Yes ma'am. That's why for conventional purpose, whenever we write f is equal to g, that means the function value, the function is the domain of the functions are common, and at each point of the domain f and g takes common value। इसलिए हम बार बार आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, क्योंकि अगर दो डोमेन पे डिफाइन रहेगा तब तो हम नहीं कह सकते ना कि f इज इक्वल टू जी। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है हमारा 1 से 2 है, मान लीजिए S1, ठीक है। S2 हम मान लेते हैं 3 to 4 है, कोई भी फंक्शन डिफाइन है, आइडेंटिटी ही मान लेते हैं, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू x मान लेते हैं, और g ऑफ x इज इक्वल टू 1 से 2 जाएगा ये, तो इसको 2 से 4 मान लेते हैं, 2 से 4, और इसको डिफाइन करते हैं 1/2x। तो क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? अगर हम No. रेंज देखेंगे कि ये इस फंक्शन का रेंज कहाँ आ रहा है, तो रेंज ऑफ f क्या आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है तो सेम डोमेन दे देगा S1, राइट। और रेंज ऑफ G2 क्या जाएगा, g ऑफ x डिफाइन है 1/2 ऑफ x, तो रेंज ऑफ g क्या होगा 1,2। राइट, 1,2। तो अगर हम केवल फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं तो दोनों ही सेम आ रही है ना, रेंज तो दोनों का सेम है। तो क्या हम इन दोनों फंक्शन को सेम बोल सकते हैं? नो मैम, No ma'am. नहीं बोल डोमेन सकते, अलग है। क्योंकि डोमेन अलग अलग है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑल्दो फंक्शन वैल्यूज आर सेम बट फंक्शंस आर नॉट सेम। 1 से 2, राइट, ये हो गया हमारा f, और 2 से 4 में g हमारा होगा, सेम चीज आ रही है, बट दे आर नॉट सेम, क्योंकि इनमें शिफ्टिंग है ना, डोमेन सेम नहीं है। तो जब तक डोमेन नहीं सेम होगा हम फंक्शंस को कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये था, इसीलिए हम बार बार x को आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, ताकि जिस भी पॉइंट पे हम कंपेयर करें उन सारे पॉइंट्स पे वो चीजें होल्ड होनी चाहिए डोमेन के। क्लियर? Yes. मैम ओके, और किसी को कोई दिक्कत आई थी प्रूफ करने में, या प्रूफ हो गया था? अच्छा, एक और हमें बताइए, अगर हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है, लेट v बी द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n विद रियल कोफिशिएंट, अगर हम यहाँ डिग्री वाला कांस्टेंट हटा दें, हम डायरेक्टली सेट लें, लेट v बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स,
और उनके कोफिशिएंट्स रियल हो और फील्ड भी हम स्केलर ले रहे हैं और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं, क्या वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? सोच के बताइए। यस मैम। फॉर्म करेगा ना? क्लियर है ना कैसे कैसे करेगा सारे प्रॉपर्टीज? क्योंकि आगे हम जब आएगा तो हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, so now let us proceed and now we will learn what are the some basic properties of vector space. Whenever now I assume that V over F be a given vector space where addition and multiplication are defined, because here I am going to prove some results, so I am denoting this plus and dot as usual multiplication and addition, but this can be anything whenever this V over F is a vector space. मैथमेटिकल प्रूफ एब्स्ट्रैक्ट सेंस में कैसे करते हैं ये आप लोग अवेयर हो ना? जनरल चीजें लेके कैसे चलते हैं उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, so let V over F be a vector space and X, Y, Z be any three elements of V and A is a member of F, means field. Then if X plus Z is equal to Y plus Z, then X is equal to Y. मतलब अगर हमारे पास X, Y, Z कोई तीन मेंबर है, कोई तीन वेक्टर्स हैं और वो ऐसे है कि X plus Z is equal to Y plus Z हो, then we have X is equal to Y. And also this means what? This law is known as right cancellation law. Sorry. Right cancellation law. Why? Because Z is going to cancel from the right. And the second one is known as if Z plus X is equal to Z plus Y, then also X is equal to Y. Means Z will be cancelled from the left side, and that's why the second law is known as left cancellation law. Now let us see how this will happen, that if X, Y, Z are three members of vector space, then how the things are going to happen. जैसे अभी हम लोग जब रियल नंबर सेट या कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं ना. जैसे मान लीजिए x plus 2 is equal to 3 plus 2 है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग कंक्लूड करते हैं ना x is equal to 2. Sorry, 3, not 2. 2 is going to cancel. करते हैं ना? यस मैम। Yes, जब हम ma'am. लोग हाँ जो आपने एब्स्ट्रैक्ट वाली बात बताई वो थोड़ा समझा नहीं। आपने बोला कि हम लोग जनरल लेके प्रूफ करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट लेके, वो थोड़ा क्लियर एक्चुअली हम नहीं। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ हमने V over F लिया, अभी ये हम कोई भी एक वेक्टर स्पेस होगा उनमें ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी, चाहे कोई भी हो. हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि Rn over R, Cn over C या फिर Rn over C, Cn over R, मतलब किसी स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस के लिए हम नहीं प्रूव करने जा रहे हैं. ये प्रॉपर्टीज हम इन जनरल प्रूव कर रहे हैं. दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी सारे के सारे वेक्टर स्पेस में होल्ड करेंगी. कोई भी वेक्टर स्पेस लें हम, अगर वो वेक्टर स्पेस है, दैट मीन्स व्हाट, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड. और यहाँ पे हमने प्लस और डॉट सिंपल वाला यूज किया है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है. इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर स्पेस जिस भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फॉर्म किया है वो वाला वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. बस यहाँ नोटेशन सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये प्लस और डॉट यूज किए हैं.
यस मैम। तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेरी कर सकते हैं ना कंटेक्स्ट पे ना? हाँ हाँ, वो Okay, डिपेंड okay. करेगा कि ये V ओवर F हम किस पे, ये किसके रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस फॉर्म किया है, कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग ये प्लस और डॉट चलेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि ऑल्दो हम यहाँ सिंपल वाला लिख रहे हैं, लेकिन ये सिंपल वाले प्लस और डॉट नहीं है, ये जो भी इस वेक्टर स्पेस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन है, वो वाले बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ठीक है, Thank you, ma'am. okay. So now we will see how we usually write this. कि अगर x plus 2 is equal to 3 plus 2 होता है तो हम डायरेक्टली कंक्लूड करते हैं x is equal to 3. अगर 3 plus 2 is equal to 3 plus y होता है तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर देते हैं y is equal to 2. ये सारी चीजें हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पर ये क्यों होती थी हम लोग कभी इसके डेप्थ में नहीं गए, क्योंकि हम लोग बस रियल नंबर सिस्टम पे काम करते थे या ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। और इन दोनों में ये सारी प्रॉपर्टीज क्यों होल्ड होती हैं, क्योंकि रियल नंबर का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट इटसेल्फ वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। हम लोगों ने प्रूव किया था ना पिछले लेक्चर्स में Yes, ma'am. कि R ओवर R वेक्टर स्पेस है, C ओवर C वेक्टर स्पेस है, C ओवर R वेक्टर स्पेस है या नहीं? C over R with respect to usual addition and usual multiplication वेक्टर स्पेस है या नहीं? चेक नहीं किए हैं मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, अभी इसके बाद तो क्लास काफी लेट होगी ना। C ओवर R और R ओवर C, इनमें से कौन वेक्टर स्पेस है कौन नहीं है, ये आप लोग हमें नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा वेरीफाई करके। हम पूछेंगे, अगर हम बोलते हैं तो आप लोग याद दिलाइएगा हमें। ओके मैम। ओके, मैम So क्वेश्चन now एक let बार us- रिपीट करिए थोड़ा। क्वेश्चन ये है कि C ओवर R with respect to usual addition and usual multiplication of complex numbers वेक्टर स्पेस है या नहीं, और दूसरा है R ओवर C, मतलब इस वाले में जब हम जा रहे हैं तो ये हमारा V है और ये हमारा F है, और जब इसमें जा रहे हैं तो ये हमारा V है और ये F है। तो हमने मैम, ये इसके पूछा अलावा- कि हाँ, इसके अलावा मैम और कौन कौन सी बाइनरी ऑपरेशन हो सकती हैं? इसके अलावा बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग जैसे कि एक मिनट बताते हैं। जैसे हम दो नंबर्स का सेट लें x और y, अच्छा अभी एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा, हम इसे देख के बताएंगे कि और ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर और यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा और कैसे ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं जिनके साथ वेक्टर स्पेस फॉर्म होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएं तो? नो प्रॉब्लम मैम, ठीक है। ओके मैम, Q ओवर R पॉसिबल है? तो रेशनल नंबर ओवर रियल फील्ड। Q over R with usual addition and multiplication यस मैम, ये इसका वेक्टर रिवर्स स्पेस R ओवर Q। R over Q, गुड क्वेश्चन, सोच के बताइए आप लोग, हो सकता है या नहीं? ट्राई करेंगे इसको मैम अगली क्लास में। ठीक है, ये चारों तब आप लोग ट्राई करिएगा। हालांकि हम इतना बता सकते हैं
कि R ओवर Q वेक्टर स्पेस होगा, Q ओवर R वेक्टर स्पेस नहीं होगा, C ओवर R यस मैम। वेक्टर स्पेस होगा, R ओवर C वेक्टर स्पेस नहीं होगा। यस मैम। क्यों नहीं होगा? मैम मैं इसकी एक प्रॉपर्टी जो इसके अंदर में है उस वो बड़ा होना चाहिए और जो बाहर है वो छोटा होना चाहिए। तो इसमें जो क्या कहते हैं क्यू ओवर आर जो है इसमें आप बताए हैं, इसमें रियल नंबर तो पूरा आ गया और जो ये क्यू है इस क्या जो कहते हैं इसे, ये छोटा इसमें है, इसलिए इस पे पूरे प्री डिफाइन गलत बता रहे हैं। मैम सी स्केलर आ जा रहा है और आपने जो भी लॉजिक दिया वो सही है, पर वो मैथमेटिकली प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटा Because बड़ा of का क्या मतलब C है? scalar, क्योंकि ma'am. C इज स्केलर, C मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्केलर है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पहले हमें ये बताइए कि छोटे बड़े का क्या मतलब है, क्योंकि R में भी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है, C में भी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है, कार्डिनलिटी दोनों सेट की बराबर है। किसी के पीछे से टीवी की आवाज आ रही है, Ma'am, प्लीज बंद cardinality करिए। is the same, but हाँ, बट Q ओवर R Q नहीं होगा, नूर इसके भाई लिए आपका माइक ऑन है, फर्स्ट आप ऑफ करो। Q ओवर R क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि C into V should go to V for every C in F, है ना? पहले ही डेफिनेशन में दी जाती है ना वेक्टर स्पेस के। सी हियर बाइनरी फंक्शन एंड दैट सेटिस्फाई दिस 8 एक्सियम्स। सो जब हमने डिफाइन किया था तो इन बाइनरी फंक्शंस के लिए बताया था ना कि ये कहाँ से कैसे डिफाइन होती हैं। यहाँ पे देखिए, वेक्टर एडिशन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है? V क्रॉस V से V पे होता है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है? F क्रॉस V से V में देता है। दैट मीन्स व्हाट? For every V1, V2 in V, V1 plus V2 should go into V, and for every A in F, V in V, AV should go to V. तो यहाँ पे क्या होगा जब Q और R के साथ हम लोग जा रहे हैं, कहाँ गया ये Q और R के साथ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी, तो फिर ये C इंटू V सबके लिए जाना चाहिए ना। मतलब किसी भी रेशनल नंबर से हम किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो हमेशा रेशनल नंबर होगा? नो मैम। नो मैम। नो नहीं होगा ना, क्योंकि no, जब हम ma'am. रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें इरेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, और इरेशनल और रेशनल का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? irrational number. Like 2 is a rational number, root 3 is a irrational number. Their product will be what? 2 root 3. 2 root 3 is a rational or irrational? इरेशनल। irrational. तो वो क्यों में नहीं जा पाएगा? तो ये जो सेकेंड ऑपरेशन हमने दिया वो इस पर डिफाइंड नहीं रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। जब रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी रियल नंबर से हम करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि रियल नंबर ही, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है ना। Yes, ma'am. Yes, So ma'am. the idea that someone said that whenever this is a subset of F is a subset of V, it will form a vector, it may form a vector space is true. But whenever this V is a proper subset of F, in that case, this will not be a vector space. Basically यही चीज हो रही है यहाँ पे। Q हमारा R में contained है, Q प्रॉपरली R में कंटेन्ड है, और इसी की वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं हो पा रहा है।
सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है कि R हमारा प्रॉपरली कंटेन, सॉरी इक्वलिटी नहीं लगाते, प्रॉपर कंटेनमेंट का मतलब तो जानते हैं ना आप लोग? यस मैम। यस मैम। कोई भी ऐसा वर्ड है Yes, जिससे ma'am. आप लोग नहीं अवेयर हैं और हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। मैम नहीं Okay, मालूम। ma'am. Thank you. सो 2 क्वेश्चन तो यही बाय कार्ड हो गया आप लोगों का, बचा 2 ही होमवर्क। कोई बात नहीं, इसे ही मैम करिएगा। प्रॉपर कंटेनमेंट मतलब क्या, उसके नंबर लाइन पे ये आता है ना? प्रॉपर कंटेनमेंट का मतलब ये हो गया, अगर S1 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन H2 है, दैट मीन्स व्हाट, X1 belonging to S1 implies that X1 belonging to H2 and there exists some X2 in H2 such that this X2 does not belongs to S1. मतलब H2 लाइक में, प्रॉपर सबसेट ना? हाँ प्रॉपर सबसेट ही है। जैसे कि H2 में कोई एक हो जो S1 में ना हो, लेकिन S1 के सारे एलिमेंट्स H2 में चले जाएं, तो वहां पे हम प्रॉपर कंटेनमेंट बोलते हैं। और उसके लिए सिंबल में हम ये वाला यूज करते हैं, नीचे इक्वलिटी वाला साइन नहीं लगाते, ये प्रॉपर कंटेनमेंट को डिनोट करता है इन नोटेशन फॉर्म। ओके मैम। एक्सक्यूज मैम, हाँ मैम ये जो आप 4 बोली है इसमें से 2 बाइकआउट आप किसने किया है, मतलब कौन सा 2 बाइकआउट आपने किया वो थोड़ा एक बार बता दीजिए। यहाँ पे हमने जैसे कहा कि ये Q ओवर R, Q ओवर R स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि C इंटू V इज नॉट ऑलवेज बिलोंगिंग टू V। रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन मे बी इरेशनल हो सकता है, तो जो वो इरेशनल नंबर होगा वो तो V में नहीं जाएगा ना। तो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो ही नहीं डिफाइंड है। बाइनरी फंक्शन जो हमारा जाना कहाँ से है, डॉट हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, डॉट इज डिफाइंड F फ्रॉम cross F V. क्रॉस B टू V। और इस वाले में भी यही हो रहा है R ओवर C में, क्योंकि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो वो R में नहीं जाएगा ना फिर। तो ये जो Q ओवर R और R ओवर C है, ये दोनों वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म कर रहे हैं। इसका आप में से किसी ने बताया, वो उसने सही बताया कि जब भी, अगर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि F और V एक दूसरे के सेट या सबसेट हो। लाइक Rn ओवर R भी तो हम लोगों ने वेक्टर स्पेस देखा ना, बट Rn ओवर Rn R का सबसेट नहीं है, ना ही Rn R का है, दोनों ही चीजें नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि इन V और F में से कोई एक दूसरे का सबसेट या सेट ही हो, बट हाँ, whenever they are subset, in that case from where we can there we can conclude that whenever this V is a proper subset of F, in that case this will not form a vector space. जब भी ये V प्रॉपर सबसेट हो जाए F का, तब वो वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म कर पा रहा है। और यही चीज यहाँ पे होल्ड हो रही है कि Q एक प्रॉपर सबसेट है R का, तो ये फील्ड नहीं, ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म कर पाएगा। और सेम चीज यहाँ इसके साथ हो रही है कि R जो है वो C का प्रॉपर सबसेट है, तो ये भी वेक्टर स्पेस Yes, ma'am. फॉर्म कर रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, जो पूछ रहे थे उनको क्लियर हुआ? They may be go. Okay, so now let us proceed with cancellation law. Cancellation law says that what, whenever V over F is of any vector space with some given operation, क्योंकि जब हम वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं that means हमारे पास ऑपरेशंस हैं जिसके रिस्पेक्ट में ये 8 प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, राइट? सो
जब हमारे डेफिनेशन से ये चीजें क्लियर होती हैं तो हम लोग डायरेक्टली v ओवर एफ भी लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ v ओवर एफ प्लस डॉट वेक्टर स्पेस होता है। In short notation, sometimes whenever this plus and dot is clear from the context, we can also denote vector space by only v over f. ठीक है? That's why I have denoted here v over f be a vector space. और जब v over f कोई वेक्टर स्पेस है और x y z कोई तीन मेंबर है v के, whenever the x plus z is equal to y plus z, then x is equal to y. Means z will be cancelled from left right side. So this property, first property, is known as right cancellation law. Now let us see why this will happen. Sorry, right. Excuse me, ma'am. Yes. Are you listen? Yes. Ma'am, during class, why you didn't show the face? Because a lot of a student, if you're showing your face during class, the interaction is maybe good for a student. But it will affect our network issues. Yes, ma'am. That will lower the bandwidth. Ma'am, this question is rising during our campus immersion also. So it's crucial for a student. भाई मैम कह रही हैं कि नेटवर्क इशू होगा और मैम अगर कंफर्टेबल भी नहीं है तो फिर हमें प्रेशर नहीं करना चाहिए ना, कॉमन सेंस चाहिए। I'm not asking your personal opinion. Sorry. Ma'am, please give me answer. सी अगर हम वीडियो ऑन करेंगे हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमारे साथ साथ फिर वो आप लोगों के वीडियो को देगा और वो फिर क्लास को डिस्टर्ब करेगी। Yes, okay, ma'am. Okay, not an issue. Okay, ma'am. Then continue your class. Thank you for giving me answer. और अथॉरिटी से हम लोगों को कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन भी नहीं आया कि वीडियो ऑन करके ही क्लास लेनी है, क्योंकि उधर से भी पता है उन लोगों को नेटवर्क इशू आता है, इसकी वजह से ही हम लोग वीडियो ऑफ करके चला रहे हैं। क्लास काफी बच्चों की है ना, तो वो साथ में हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाता है। Yes, ma'am. I understood. Okay, It's so now let us quite continue. hard. Okay. Let V over F be any Okay, vector ma'am. space. Yes. Please mute your mic. And X, Y, Z be any three element of V such that X plus Z is equal to Y plus Z. Please mute your mic. This should imply that please mute your mic. Suman, please mute your mic. Guys, please mute your mic. It's annoying. Okay, so if X is any number, since this is a vector space, then just a minute. No voice.
can I write for its proof, for any x belonging to V, since we know that by additive identity property x is equal to x plus 0, right? Can I write x is equal to x plus 0? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If I can write this, we also know that whenever z belongs to V, then minus of z belongs to V, which is additive inverse of z, and एक मिनट लिख लेते हैं फिर बताते हैं. This 0 can I represent by z plus minus of z? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, that I is can x write- na. X is equal to x plus 0, no? The हाँ, notation x is is equal to x plus 0. For any member in V, by the property of existence of additive identity or zero vector, we can represent x as x plus 0. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है ना. सी देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है ना, फॉर ऑल Yes, v ma'am. in v, v plus 0 is equal to v. So by utilizing that, we can represent x is equal to x plus 0, and this 0 can be represented by z plus minus of z, क्योंकि एडिटिव इनवर्स भी हमारे पास ये कहती है कि जब कोई v ओवर f वेक्टर स्पेस है तो हर v के लिए एक माइनस v टाइप का एलिमेंट उसमें मिलेगा जो v प्लस माइनस v को 0 देगा. सही yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. So by Yes, ma'am. utilizing this fourth property, can I represent this 0 by z plus minus z, जहाँ पे माइनस Yes. z इसका एडिटिव इनवर्स है. And now since Yes, ma'am. x plus now by associativity property of this vector space, can I represent this x plus z plus minus z as this one? Yes, ma'am. लिख सकते हैं. अब हमारे पास क्या दिया है, x plus z is equal to y plus z. Can I replace this x plus z is equal to y plus z? Yes, ma'am. Right? Ma'am, ये that भी is- कर सकते. That is to prove ना. हाँ, प्रूफ कर रहे हैं ना कि ये कैसे होता है. x plus z is equal to y plus z अगर किसी भी वेक्टर स्पेस में, तो हमेशा x is equal to y हो जाता है. So we Provided- can use the proof statement as in it in proof ना. That is you are using x plus z as it is in proof. So we can use ना. My question is, can we use it or not? ओके, फॉर दैट हमें लेफ्ट ये चीजें जब होल्ड होंगी लेफ्ट वाली साइड, तब तो हम राइट को कंक्लूड कर रहे हैं ना. तो जब हमें ए इम्प्लाइज बी दिखाना है तो हम ए को एज्यूम सही मान के चलेंगे तभी तो बी को दिखा पाएंगे ना. अगर ए ही नहीं होल्ड हो रहा है तो बी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसीलिए हमने माना कि ये अगर गिवन है then we are concluding this. From this we are not concluding this one. How we ये can अगर x is replace y? yes, that's why I have replaced x plus z by y plus z, क्योंकि यहाँ पे इसको हम ट्रू मान के चल रहे हैं. आगे Okay, बढ़े. ma'am. Yes, ma'am. You can continue. Okay. Now again by utilizing the associative property of vector addition, can I represent this one as y plus z plus minus of z? Yes, Yes, By ma'am. associative property. Now z plus Yes, ma'am. minus z bar z plus minus z is equal to 0. This will give us what? Y plus 0. And by again the property additive identity property, what we have, y plus 0 will be equal to y, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hence, तो हम लेके चले थे x,
और हमें मिल गया x इज इक्वल टू वाई. सो व्हाट वी कंक्लूडेड, whenever x plus z is equal to y plus z, then x is equal to y. Means z will be cancelled from right side. Now for the left cancellation law, can you take a attempt? Yes, ma'am, we can. Yes, ma'am. लीजिए करके बताइए हमें हो रहा है या नहीं. If z plus x is equal to z plus y, then x is equal to y. प्रूफ करके दिखाइए, हमें फोटो खींच के चैट बॉक्स में भेजिए. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ करनी है ना, ये तो राइट वाली है. ये सेकंड वाली प्रूफ करनी है. इफ z प्लस एक्स इज इक्वल टू z प्लस वाई, देन x इज इक्वल टू वाई. x is equal to x plus 0. This can be written as x plus z plus minus z. ओके, आपने इसमें इसके साथ कम्यूटेटिविटी भी यूज कर ली है. यस, ये निशांत कुमार, हु इज दिस? हाँ वो सही है, लेकिन until and unless some property is really required for us, मतलब जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है उन्हें यूज करने से, उन प्रॉपर्टीज को यूज करने से हम लोग बचते हैं. इसलिए हमने कहा कि अगर कम्यूटेटिविटी हमारे लिए वहां नीडेड नहीं है तो अच्छा होगा हम लोग बिना उसके प्रूफ कर लें, क्योंकि वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी उस पे ऐड हो जा रही है ना. सो बेटर है कि हम बिना कम्यूटेटिविटी को यूज किए प्रूफ करें. हालांकि वो भी प्रूफ गलत नहीं है, पर उसके लिए फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा.
Like here, what is given? Z plus x is equal to z plus y. Z plus x is equal to z plus y. We have given if x, y, z are members of V, then we have to show x is equal to y. For that, how we can take a trial? As I wrote, x is equal to x plus 0. Can I denote this as x is equal to 0 plus x? ये भी तो डिनोट कर सकते हैं ना। हालांकि इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि हम एक बार कम्यूटेटिविटी यूज कर लिए हैं, तो नो इश्यूज, दोनों प्रूफ सही हैं। नहीं, कंफ्यूज मत होइए। अगर टाइम लग रहा है तो टाइम थोड़ा स्पेंड करिए, पर चीजों को एक सही डायरेक्शन में लेके चलिए। Okay, so today we will stop the class here. In the next class, we will see the remaining identities, as well as we will see whatever the further in the syllabus. Any question, anyone? Ma'am, can Yes? I ask a question? Yes, please. Yes, ma'am. Ma'am, you know, after the class, the lecture was not showing in download section. So it's not available in recorded form. तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?